Most of my portfolio consists of mid cap and small cap. In every bull market, I keep on investing in real estate. I take some money out from the equity and invest in real estate just to create a income, just to create a passive income, because I don't want to be dependent on the income of stock market. मेरा एक ही एडवाइस है यहाँ पे कि हिस्ट्री के टीचर से ज्योग्राफी नहीं सीखने का. अपना गुरु भी अगर बनाना तो ऐसे आदमी को सोच के बनाना जिसने बाजार के अंदर में 20 साल 25 साल इन्वेस्ट किए, इन द सेंस उसको एक्सपीरियंस हो. किसी नए आदमी को आप गुरु बना लोगे अगर आप, तो वो आपका गुरु बना ही क्यों? वो नया आया है और आपको कंसल्टेंसी देकर पैसे कमा रहा है, तो बेड़ा गर्क होने वाला है. ये सब गुरु घंटाल होते हैं, कोई गुरु नहीं होता है ये सब. इफ यू विल ट्रीट इट एज ए गैम्बलिंग देन इट विल प्रूव ए गैम्बल फॉर यू. ये धीरे धीरे पैसा कमाने का ये साधन है, बिजनेस है ये. तो ये जुए का अड्डा नहीं है और रातों रात यहाँ करोड़पति आप नहीं बन सकते हो. यहाँ पर ये प्रोसेस है, प्लांट के जैसे, फार्मिंग के जैसे. लास्ट इन्वेस्टमेंट आई मेड 6 months बैक, दैट वाज $250,000 as per RBI rule. Now in April, I can invest further $250,000 on my personal account. So maybe I may invest some 8% or something, or 10% something in real estate. So maybe 85 to 87%, between 85 to 90% in equity. And within equity, what's the split of mid-cap, small-cap stocks? Most of them are mid-cap and small-caps only. Actually, I don't understand the definition of mid-cap and small-cap. As per CV or as per the exchanges, it is different. But most of my portfolio consists of mid-cap and small-cap only. And Vijay, what about your real estate exposure? How did that come about? What did you buy? When did it start? Started in, I think in 2003 or 4 or something. That was the first real estate besides my house, which I actually invested in. That in every bull market, I keep on investing in real estate. I take some money out from the equity and invest in real estate just to create a income, just to create a passive income, because I don't want to be dependent on the income of stock market. So that is how it started. And this, you get rental income from these properties. Property, so that I am free. Every time, even the market falls, I am free. It, in fact, I think adds to your risk-taking ability. Yes, exactly. Because I don't need money. So if I don't need money and if I have surplus money, like I'm getting from dividend or I sell some shares, I get some money. So what would I do? So I reinvest into the market. And Vijay, what about your investments in gold and silver? How did that come about? And how do you look at gold and silver? Do you look at it as a diversifier? No, maybe because I bought some this sovereign gold bond. Started investing in last 3 years, I think. So as I said, that I just want to take some money out from the market. Like maybe suppose if I made 100 rupees, say in any bull market, for example. So I just take 2 rupees or 3 rupees out of that, just to create a passive income, just to create a balanced portfolio. So that is not a significant part of my portfolio in gold and silver. Just for, you can call it just for fun or just for a balanced portfolio, I'm investing. And Vijay, how did your portfolio perform over the past year? Luckily, everybody is genius in a bull market. So I was also a little smarter. So maybe I have not played any role into this. Market has played all the roles. So it has performed well. But can you give just a broad range? In fact, I have not calculated, but maybe 30-40%, I don't remember. My calculation may be wrong. I get to know about my portfolio from media only. I never calculate my demat statement and all, because all those things are imaginary only, digital money, So what media tells me, I believe that must be near about correct or maybe whatever. And Vijay, can you also tell us about your international exposure? Right now, have you bought anything? Because we saw the markets run up quite a bit and you were thinking about it. So did you end up buying something on the international side? Yes, I remember last time when I spoke to you, I said that I'm about to invest some money in international market. So after that, last year or maybe 1.5 years back, I invested in Google, Alphabets. And recently, 6 months back, I bought Make My Trip on NASDAQ. So these two investments, international investments, I have in my portfolio. And what was the rationale for buying these at that time? Nothing for fun, just to tell myself, okay, I have some international exposure, nothing to do with rupee depreciation or dollar appreciation and all. Just to, like, you can call it a small challenge. Okay, if I am buying some shares and if the its stock is doing good, I feel happy. Okay, I identify this share just for fun, because amount is very small. As per that liberalized scheme, remittance scheme, LRS.
But are you planning to maybe buy some more stocks on the international side, or? Maybe because last investment I made 6 months back, that was $250,000 as per RBI rule. Now in April, I can invest further $250,000 on my personal account. So maybe I may invest some more money, $250,000, maybe. And are you holding on to any cash, or you're fully deployed? How do you look at it? No, fully deployed. I never have cash in my career of say 30 years. I don't remember I have ever had cash in my bank account. Maybe if I have some expenses, like if I feel that maybe 3 months later I have to spend this much of money, maybe in some property or whatever it is, then I can create cash 2, 3 months, 4 months in advance, for some particular purpose. But usually, otherwise, I don't. I am enemy of cash. I lose my sleep when I have cash in my bank account. And Vijay, we know that you have made so much of wealth from mid, small cap, and even micro cap stocks, as it is defined conventionally. But what is your risk management strategy? Do you go all in? Are all your bets high conviction, or you like to stagger your investments? In the sense? In the sense, do you like to maybe, when you spot a multi-bagger stock, potentially multi-bagger stock, so do you maybe take small investments in the beginning build it up, or you go all in? Nothing, all in. All in. Yeah, all in. Whatever money I have today in my bank account, or whatever money I've created to buy that shares, I will invest the entire amount. Okay. Yes, that gives me happiness that I am invested in the market. And when I identify some shares, so I feel like then it becomes like an addiction to me, until unless buy some 1% or something, it becomes like I'm missing something. Right. I may go wrong also. Right. But जैसे आपका portfolio is say 100 rupees. Now, would you you thought कि there will be a particular stock that will run up, potentially in the future, but obviously we don't know how it plays out. So would you maybe take a smaller allocation of your portfolio and then build it up? या कैसे करते हैं? वो possible नहीं होता, because nowadays what happens वो जो मैं जब लेता हूँ ना, तो वो लोगों को मालूम पड़ जाता है वो, ठीक है, वो लीक हो जाता है, चाहे वो ब्रोकर के यहाँ से होता होगा या आई डोंट नो कहाँ से होता है, आई डोंट नो, लेकिन वो मेरा ही खबर मेरे पास शाम को आ जाता है. इफ आई हैव बॉट सम शेयर्स, वो 2 बजे मैं लूंगा तो मेरे को 3 बजे, अभी तो लेटेस्ट 15 मिनट बाद मेरे पास खबर आ गया, किसी ने फोन करके बोला कि तुमने ये लिया है. सो दैट्स ए प्रॉब्लम. सो मैं चाहता हूँ जो हो 1, 2 दिन 3 दिन में सर्किट लगा के खत्म करूँ जो भी लेना है खत्म करूँ. राइट. हाँ, अब तो लाइक खबर ऐसे ही वो मार्केट थोड़ा सा ऐसा हो गया ना, वो खबर आ जाती है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पहुंच जाता है. एंड विजय, व्हाट वुड बी योर बिग एडवाइस फॉर इन्वेस्टर्स? अब ऐसा हो गया कि ऑन सोशल मीडिया वी हैव लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स कमिंग इन. काफी लोग स्टॉक के बारे में रिकमेंडेशन देते हैं, कई लोग इवन एसएमई आईपीओ के बारे में रिकमेंडेशन देते हैं. तो उसमें आपका what will be your advice to investors? How should they deal with this? मेरा एक ही एडवाइस है यहाँ पे कि हिस्ट्री के टीचर से ज्योग्राफी नहीं सीखने का. अपना गुरु भी अगर बनाना तो ऐसे आदमी को सोच के बनाना जिसने बाजार के अंदर में 20 साल 25 साल इन्वेस्ट किए, इन द सेंस उसको एक्सपीरियंस हो. किसी नए आदमी को आप गुरु बना लोगे अगर आप, तो वो आपका गुरु बना ही क्यों? नया आया है और आपको कंसल्टेंसी देकर पैसे कमा रहा है, तो बेड़ा गर्क होने वाला है. ये सब गुरु घंटाल होते हैं, कोई गुरु नहीं होता है ये सब. तो उनसे बच के रहो. और दूसरा, इसको बिजनेस समझो. इसको मेरा कोट भी है कि मार्केट रिवॉर्ड्स यू एज पर योर परसेप्शन. इफ यू विल ट्रीट इट एज ए गैम्बलिंग, देन इट विल प्रूव ए गैम्बल फॉर यू. ये धीरे धीरे पैसा कमाने का ये साधन है, बिजनेस है ये. तो ये जुए का अड्डा नहीं है, और रातों रात यहाँ करोड़पति आप नहीं बन सकते हो. यहाँ पर ये प्रोसेस है, प्लांट के जैसे, फार्मिंग के जैसे एक प्रोसेस है, उसको फॉलो करना चाहिए. और जैसे कि एवरीबडी वांट्स टू नो व्हाट यू थिंक अबाउट मिड कैप, स्मॉल कैप, आपका मार्केट आउटलुक क्या है. बट मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि अब देयर वाज लॉट ऑफ टॉक अबाउट फ्रॉथ इन मिड एंड स्मॉल कैप. सेबी ने भी कहा कि देयर कुड बी अ बबल फॉर्मिंग अप. काफ़ी कंसर्न्स थे, और काफ़ी लोग स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर्स देखते हैं जितना मिड एंड स्मॉल कैप से अगर वो पैसा बना सके, तो दे ऑलवेज लुक फॉर दोज अपॉर्चुनिटीज. सो आप क्या एडवाइस करेंगे? शुड दे कंटिन्यू लुकिंग एट इट? एंड उनका, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स में नॉट हैव द सेम एबिलिटी और सेम पोर्टफोलियो टू इन्वेस्ट और बैक बिग स्टॉक्स. सो हाउ डू दे मैनेज रिस्क? पहले तो फ्रॉथ का जो बात है वो है कि समझो 5000 शेयर है मिड कैप और स्मॉल कैप्स के अंदर, सब में फ्रॉथ है ऐसा बात नहीं है, लेकिन बहुत सारी पॉकेट्स में फ्रॉथ है. और फ्रॉथ का एक आपने देखा भी होगा, 1 महीने पहले जो मार्केट जो जोर से करेक्ट हुआ, इंडेक्स तो गया होगा 1000-1500 पॉइंट, लेकिन 30-35%, 40% मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयर्स चले गए.
वो एक शुद्धि हो गया, जिसको हम बोलते हैं कि जो होना था एक बार वो थोड़ा सा शुद्ध हो गया, उसके बाद में मार्केट वापस आ गया। ऐसे झटके बार बार आने वाले हैं, ऐसे झटके हर 6 महीने के अंदर में आएंगे। जिस तरह से लोगों का एक्साइटमेंट हो गया है, मार्केट के अंदर में पार्टिसिपेशन है, ये लोग ही वैसा वो झटका लेकर आते हैं। तो उससे डरने का नहीं है। उसमें सिंपल है कि शेयर्स का चुनाव है वो सही होना चाहिए। आपको ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि जिसके फंडामेंटल सही हो, जिसमें कोई ऑपरेशन नहीं हो, कोई मैनिपुलेशन नहीं हो, और वो क्लियर गेम जो हो, कंपनी का जो प्रोमोटर है या कंपनी का जो क्लियर कट कंपनी हो, फंडामेंटल हो, फ्यूचर ब्राइट हो, उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और नए इन्वेस्टर्स को मेरा ये सलाह ये है कि उनको म्यूचुअल फंड के थ्रू मार्केट में आना चाहिए, जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, क्योंकि ये मुश्किल है। ये कोई ऐसा गेम नहीं है कि जो आप देख कर सीख जाओगे। अगर देख कर सीख जाते हैं तो मैं आपको एक क्वेश्चन करता हूँ कि जैसे आपने अपनी ज़िंदगी में समझो 400 बार अपने हेयर कट किए होंगे, बाल कटवाए होंगे। आज तक आप अपना बाल काट सकते हो गया, या किसी दूसरे के बाल आप काट सकते हो क्या? नहीं काट सकते हो ना। देखने से नहीं सीखना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, तब आप वो सीखेंगे। नए इन्वेस्टर को ऐसे लगता है मैं इसका पढ़ा, उसका पढ़ा, इसकी सुना, उसकी सुना और मैं कर सकता हूँ। ऐसा नहीं होता है। आपको उसमें मैंने तैरने के लिए नाक और कान में पानी जाना जरूरी है। एंड स्पेशली मिड एंड स्मॉल कैप, इतनी वॉलेटिलिटी के साथ स्पेस, एकदम बहुत वॉलेटिलिटी है, 30 से 40% चल जाते हैं। लार्ज कैप ऐसा नहीं जाते हैं। तो वो समझना चाहिए कि कितना बड़ा रिस्क आप ले रहे हो। तो रिस्क का एक बैलेंस होना चाहिए कि कितने रिस्क आप ले सकते हो, वो आपको मालूम होना चाहिए। राइट। एक और चीज़ आपसे पूछनी थी, आर यू प्लानिंग टू ऑल्सो लुक एट सम लार्ज कैप्स टू जस्ट गिव सम स्टेबिलिटी टू योर पोर्टफोलियो? ऐसा आप सोच रहे हैं? नहीं, मेरे को लार्ज कैप में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मैं टिक नहीं पाता हूँ क्योंकि उसमें लिक्विडिटी बहुत होती है लार्ज कैप में। तो कभी मेरे को ऐसे समझ में आता है ना, क्योंकि मार्केट समझो डाउन होने वाला है, जैसे मेरे को 2 महीना पहले 3 महीना पहले लगता था मार्केट गिरेगा, तो अगर मेरे पास लार्ज कैप होता है ना, वो बिक जाता है मेरे पास में। तो इस बोल कर मैं लार्ज कैप में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वो करता नहीं हूँ, और मैं मिड कैप में ही मैं हैप्पी हूँ। स्मॉल कैप में, मिड कैप में उसमें। राइट। एंड विजय, जैसे हम कह रहे थे, देयर इज लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी इन मिड एंड स्मॉल कैप। सो जब भी आपको देखते हैं, यू आर ऑलवेज स्माइलिंग, ऑलवेज हैप्पी। तो एक तो आप कैसे खुद को इतना फ्रेश रखते हैं, एंड हाउ, यू नो, व्हाट्स द सीक्रेट ऑफ योर स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, कामनेस, एंड ऑल्सो व्हाट्स द सीक्रेट ऑफ योर हेल्थ, बिकॉज यू डोंट लुक एज ओल्ड एज यू आर? नहीं, मैं आपसे 1-2 साल छोटा हो सकता हूँ, जब तक एज का सवाल है, और या बराबर हो सकता हूँ। और जब तक कामनेस का बात है, पूरा ज़िंदगी यही काम किया है लाइफ में, एक ही जगह शॉट मारी है, जिसको बोलते हैं ना, एक ही जगह किक मारी है। तो ज़िंदगी ने यही सिखाया है कि चिंता करके मैं क्या कर लूँगा मैं। अगर मैं चिंता करूँ, मैं रोने लगूँ और ये गिर गया, ये डूब गया, तो इससे मेरा क्या होने वाला है? इससे कुछ तो होने वाला नहीं। मार्केट अपनी चाल चलने वाला है। तो बेटर है मैं मार्केट के हिसाब से अपने माइंड को एडजस्ट करूँ। क्योंकि अगर मैं डिप्रेस्ड होता हूँ, और अगर सपोज मेरे को मार्केट गिरने से अगर मेरे को इफेक्ट होता, तो मेरा अगला डिसीजन खराब हो जाएगा तो मेरे को कामनेस बहुत जरूरी है। कई बार मैं बोल चुका हूँ, ये योग के जैसे है, जो इन्वेस्टिंग है ये योग के जैसे, माइंड, बॉडी एंड सोल हैव टू बी अलाइंड टुगेदर। तो पूरी आत्मा से एक ही चीज़ होना चाहिए, अब ये मेरे को अच्छा लगता है, ये मैंने लिया, लॉन्ग टर्म के लिए है, कितने साल रखूंगा मालूम नहीं, कितने भाव पे बेचूंगा मालूम नहीं, वो मेरा कोई टारगेट नहीं है। अब लेके बैठ जाओ, कंपनी का जैसे मालिक लेके बैठा है, प्रमोटर है, वैसे मैं भी उसके अंदर में लेके बैठो। गिरेगा बढ़ेगा ये तो हर साल देखते हैं, हर बार देखते हैं, हर रोज देखते हैं। तो एक ही चीज के लिए कितनी बार मरोगे भाई? सो आप डू यू फॉलो योगा और एनी अदर फिजिकल प्रैक्टिस दैट? हाँ, मैं योग करता हूँ, थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिज्म में थोड़ा ध्यान देता हूँ, चेष्टा करता हूँ अपने आप को बेटर आदमी बनाने का। हो नहीं रहा है, लेकिन प्रोसेस है, वर्क इन प्रोग्रेस है। ठीक है। ग्रेट विजय, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस टुडे, इट वाज अ प्लेजर।